Good evening, student. Very interesting topic of chemistry, that is acid, base and salt, is continuing here. And in the last videos you have studied about the acids and classifications of acid, some properties of acid you have studied. Chemical properties of acids are continuing. In the last video you have learned about one chemical property, that's mean reaction with metals. As you have studied about the reaction with metal, that's mean all the acids in the dilute condition react with metal, form salt and hydrogen gas. Now moving towards the other properties of the acids. So see here, one property, that's mean reaction with metallic oxide. Metallic oxide. As you know, the metal like sodium, potassium, calcium, zinc, these are the metal, and oxides of these metals. Suppose you want to write the oxides of metal, so you can write Na2O, this is sodium oxide, K2O, potassium oxide. Why I am writing K2O or Na2O? Valency of oxide is -2 and valency of this sodium is 1, that's mean Na plus 1. So formula will be Na2O. सोडियम के नीचे हम 2 लिखेंगे, वैलेंसी ऑक्सीजन की सोडियम के नीचे, और सोडियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे 1 यहाँ पे लिखना है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे तो 1 मान लिया जाता है। इसी तरह से अगर हम जिंक ऑक्साइड लिखेंगे ZnO, जिंक वैलेंसी इज +2, ऑक्सीजन वैलेंसी -2, so you will write Zn2O2, but if it is the same number, so you can remove this, so you have to write ZnO, common it is. So these are the some oxide of metal like Al2O3, Al2O3. So these oxide, that's mean oxides of metal, when react with acid they form salt and water. That's mean the common reaction for that, metal oxide plus acid, it will form salt plus water. लास्ट वीडियो में आप जान चुके हैं कि सॉल्ट कौन सा बनेगा। सॉल्ट तो एसिड के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर आप HCl लेते हैं तो क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, H2SO4 लेंगे तो सल्फेट सॉल्ट बनेगा, HNO3 लेंगे तो नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा। और कौन सा सॉल्ट बनेगा ये डिपेंड करेगा इधर कौन सा मेटल ले रहे हैं। आई एम राइटिंग वन एग्जाम्पल। सपोज यू हैव टेकन कैल्शियम ऑक्साइड CaO and you have taken HNO3, this is nitric acid. So nitric acid form nitrate salt, and here it is calcium oxide. So what is the name of the salt form here? That will be calcium nitrate and water. So you will form calcium nitrate plus water, that's mean H2O. You have learnt the formula how to write the calcium nitrate. Valency of calcium is +2 and nitrate is -1. So CaNO3 whole twice. This is calcium nitrate. You have to balance now the equation. How many N? 2N. So 2HNO3, 2H, that's mean 2H. Now it is a balanced reaction. So I think you have understood about this. One more example I am writing. Aluminium oxide, it is written there, valency of aluminium is 3, oxide is -2, so formula will be Al2O3, and you are doing the reaction with sulfuric acid, that is H2SO4. Sulfuric acid will form with salt, sulfate salt, and here aluminium, so which sulfate will form? That will be aluminium sulfate. Aluminium sulfate, formula of aluminium sulfate AlSO4. The valency of SO4 is 2, so you have to write here 2 Al2 SO4 whole thrice, because the valency of aluminium is 3.
Apart this, you will form H2O. One more thing, students, I'm telling to you, when you write the reaction, first you have to write the reaction without balancing. पहले आपको रिएक्शन बिना बैलेंस करे ही लिखना है। और जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, लेकिन आप जल्दी में नहीं छोड़ते। आप भी हैबिट लाइए कि आपको यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे स्पेस छोड़ना है और यहाँ पे स्पेस छोड़ना है। मैंने देखिए पहले ही छोड़ रखा है स्पेस। क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि हमें अभी रिएक्शन को बैलेंस करना है। कभी भी प्लस इसके बाद स्पेस मत छोड़िए। इसके बीच में मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है। देखिए मैंने यहाँ पे भी स्पेस ज़्यादा नहीं छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉपर स्पेस छोड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको कोई नंबर लिखना पड़ सकता है। नाउ सी ALR balance SO4. How many SO4? 3 SO4. So we have to write 3 here. Now 3H2. So we have to write 3 here. So one chemical property of this. Another one. See, now you can write other reactions. Now number next. Reaction with hydroxide. Reaction with hydroxide. Hydroxide are also called bases, and reaction between acid and bases, these are also you can call base, but I am separating this reaction here. इसको भी आप बेस बोल सकते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, जो सॉल्युबल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होने के बाद बेस ही बनाएंगे। तो अगर हम बेस की रिएक्शन करेंगे, बेस के पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं जिसमें OH आता है। OH की वैलेंसी निगेटिव होती है, -1 होती है। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम लिख रहे हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, Cu की वैलेंसी 2, OH वैलेंसी 1। सो कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड, दैट्स मीन CuOH होल ट्वाइस। तो ऐसे आप बहुत सारे हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। So what is the basic reaction? Basic reaction means like this reaction. Main reaction, अगर ये रिएक्शन आपको आती है तो आप फिर इससे कितनी लिख सकते हैं आप जान सकते हैं। आप कितने भी ऑक्साइड बना सकते हैं और कितने भी एसिड ले सकते हैं। आपने यहीं पे देख लीजिए, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम HCl से करते तो एक रिएक्शन होती, H2SO4 से करते तो दूसरी, और HNO3 से करते तो तीसरी रिएक्शन होती। और फिर इसी तरह से तो 2 ऑक्साइड से हम 6 रिएक्शन नॉर्मली लिख सकते हैं, और उधर आपके और भी ऑक्साइड लिखें। इसी तरह से तो हम अगर बेस प्लस एसिड, तो भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को या इस रिएक्शन को जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Acid plus base, salt and salt plus water, this is neutralization reaction. I am writing one example. I am taking one base, this is NaOH, and acid I am taking here, which acid? Sulfuric acid. Dear student, sulfuric acid will form sulfate salt. Which sulfate will form? It depends. Here it is sodium here, so sodium sulfate will form. Now you have to write the formula of sodium sulfate. Sodium valency 1, sulfate valency 2. So Na2SO4 plus H2O. कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर पहले आप देखेंगे तो आप हो सकता है कि पहले NaSO4 लिख दें, लेकिन कभी नहीं देखना है रिएक्शन को। हमेशा माइंड में क्रिस क्रॉस मेथड से फार्मूला लेना है, बेसिक रिएक्शन को माइंड में याद करना है कि ये एसिडिक सब्सटेंस है, ये बेसिक है, क्या बनेगा उसको ध्यान रखना है, फिर फार्मूला लिखना है, उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना है। कोई बात नहीं है अगर आप ये लिख देते हैं और बैलेंस नहीं कर पाते, तब भी आप सही माने जाएंगे क्योंकि आपने कोशिश सही करी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे NaSO4 लिख देंगे तो फिर एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा वो, और उसमें जान जाएगा कि ये तो सही नहीं कर पा रहा बच्चा। तो आपको पहले रिएक्शन करनी है, Na2SO4 लिखना है। नाउ यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। देयर आर 2 Na, so you have to write 2 here. See how many H? 2H here, 2 4H, and in this size 2H, to add 2 here. So I think you can write more reaction. Another example I am taking CaOH whole twice and
hydrochloric acid I am taking here. So this is hydrochloric acid form chloride salt, and which chloride you can tell easily, that will be calcium chloride, and formula will be calcium chloride is CaCl2 plus H2O. How many Cl is there? 2 Cl, so add 2 here. And how many H? 2H is here, 2H is here. यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है 2H भी हैं, 2O भी हैं, सो ये 2H2O. So okay students, next property is reaction with sulfide salt. Reaction with sulfide salt. First of all, I want to tell you the examples of sulfide salt. So iron sulfide ये ब्लैक कलर का होता है, बहुत हार्ड सब्सटेंस है, लेबोरेटरी में मिलेगा आपको, आप अपने टीचर से बोलेंगे तो वो आपको दिखाएंगे. ये छोटे छोटे पीसेस जैसे आयरन के टुकड़े जैसे होते हैं, ब्लैक कलर का होता है. फार्मूला होगा FeS. सल्फाइड का सिंबल है S, निगेटिव डबल वैलेंसी, इसको फेरस सल्फाइड बोलेंगे. सोडियम सल्फाइड Na2S, कैल्शियम सल्फाइड CaS, जिंक सल्फाइड ZnS. So the basic reaction of sulfide salt, when any sulfide salt react with acid, that's mean dilute acid, it will form salt and hydrogen sulfide gas. Very important reaction it is. Sulfide salt plus acid, it gives salt plus hydrogen sulfide gas, symbol gas. सो स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, यहाँ पे अभी तक वाटर बन रहा था, लेकिन हम आपको बता दें इसका फार्मूला है H2S. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 यहाँ पे लिखी जाएगी, सल्फेट की वैलेंसी 2 यहाँ लिखी जाएगी. ये गैस है और ये आप लेबोरेटरी में बनाएंगे भी, और इसके बनाने के लिए एक स्पेशल ऑपरेटर्स लेबोरेटरी में रहता है, उसको किप्स ऑपरेटर्स बोलते हैं. आप देखेंगे कहीं पे लैब में रखा मिलेगा आपको, इस तरह का ऑपरेटर्स होगा. ग्लास का भी हो सकता है और प्लास्टिक टाइप का भी रखा हो सकता है. इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, और ये चूँकि 12th और 11th क्लास के प्रैक्टिकल्स में यूज़ होती है, इसलिए लेबोरेटरी में टाइम टू टाइम प्रिपेयर करी जाती है. और इसकी स्मेल जो गैस की होती है बहुत ही अनप्लीजेंट होती है, रॉटन एग स्मेल से जानी जाती है, रॉटन एग स्मेल. जब हम कोई भी सल्फाइड साल्ट की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो एक सॉल्ट बनेगा. सपोज़ हमने आयरन सल्फाइड लिया है, लेबोरेटरी में मोस्टली आयरन सल्फाइड का ही यूज़ किया जाता है, ये ईज़िली अवेलेबल है और सस्ता होता है ये, और इसको हैंडलिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हम अगर H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड विल फॉर्म सल्फेट सॉल्ट, एंड विच सल्फेट आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बोल सकते हैं आप इसे. फार्मूला लिखेंगे FeSO4 और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. इसकी स्मेल कैसी होती है? इसकी स्मेल रॉटन एग स्मेल होती है. और ये हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन है किस गैस की? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की. इसमें हम आराम से लेबोरेटरी में बना लेते हैं, और इस ऑपरेटर्स को किप्स ऑपरेटर्स बोलते हैं, किप्स. So another example I am writing here, it is a balanced reaction. Na2S एक एक्सपेरिमेंट है जिसको फॉर्चून टेलर बोलते हैं, उसमें हम इस केमिकल का यूज़ करते हैं. ये सोडियम सल्फाइड का यूज़ करते हैं. एक पेपर पे हम कलरलेस सॉल्यूशन से लिख देते हैं, कोई फार्चून लिख देते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इस पर ब्लैक कलर से वो लिख के आ जाता है, तो लोग समझते हैं कि ये मैजिक है. उस एक्सपेरिमेंट को फार्चून टेलर या आप एग्जीबिशन के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं. और सोडियम सल्फाइड एक
छोटे छोटे फ्लैक्स होते हैं। अब लेबोरेटरीज़ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसका भी यूज़ किया जाने लगा है। तो यहाँ पे बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड H2S गैस। H2S गैस के बारे में बहुत पूछा जाता है, नेम आ रोटेनेगिस्मल गैस, so that's name is hydrogen sulfide gas and formula is H2S. So students, I think you understand. It is enough for today. You have to write reactions and reply me in the comment section. If you feel this video is good, so subscribe and share to other students so the other can learn. Thank you. Good night.